In this topic, we'll see what is acceleration due to gravity. So, as we have studied in 9th standard, it is the acceleration produced in a body because of the gravity of Earth. So, whenever a body is at certain height from the Earth, we know that it will fall downwards because of Earth's gravitational force, and as soon as as the body reaches downwards towards the Earth, as the distance between the body and the Earth decreases, the gravitational force of Earth increases, and because of that the velocity of the body will increase in given time interval, and therefore we can say the body will accelerate. So this acceleration is because of Earth's gravitational force, and hence it is known as acceleration due to gravity. Its symbol is small g. Now we'll derive the formula for small g. So how we can derive it? For that we'll assume a body of mass m at certain height from the surface of the Earth. The height of the body from the surface of Earth is h, and if you see the distance between the center of the body and the center of the Earth, then it is re plus h. Re is radius of the Earth. You can see here this much is the radius, and this much height is the height of the body from the surface of Earth. So re plus h is the total distance of the body of mass m from the center of the Earth. Now, as we are taking the distance of this body from the center of the Earth, we have to take here the distance from the center of this body. But as in comparison to the size of Earth, the size of this body is very small, तो हम ऐसा सेंटर से ड्रॉ नहीं भी करेंगे तो चलेगा. अर्थ का साइज बहुत बड़ा है. बाकी एक्चुअली यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वी नो दैट इट इज़ अ सेंट्रल फोर्स. इट एक्ट्स फ्रॉम सेंटर टू सेंटर. So now here you can see me is mass of the Earth, re radius of Earth, m is mass of the small body, r is the total distance of the body from the center of Earth. Now according to the universal law of gravitation, अगर ये condition है तो because of this Earth there will be gravitational force acting on this body, and it will be given by this equation. The equation is g m1 m2 upon r square. m1 is mass of this body, m2 is mass of Earth, and r square is the distance between center of Earth and the body. So this is the gravitational force acting on the small body of mass m by Earth. But we know from Newton's second law that this F is equals to mass into acceleration. Here which acceleration is playing role? Gravitational acceleration. So instead of this F, now we will substitute m into g. So here we have done that substitution, and then you can see m is the mass of the same body on both the sides. So that small m will get cancelled. So we will obtain the formula for gravitational acceleration. Now here in the denominator you can see it is r square. So from this denominator we can say that the object of mass m was at certain height from the surface of Earth. But suppose if the body is lying on the surface of Earth, then h will be equal to 0. So instead of r we can write re. See from this figure, if h is 0 तो ये बॉडी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा. तो फिर वो बॉडी और ये अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अर्थ के रेडियस के जितना हो जाएगा. So when the body is lying on the surface of Earth, I can say r is equals to re. So instead of this r, we'll substitute re. So this is the formula for acceleration due to gravity. And from this equation 1 and 2, we can say that the value of g is not dependent on mass or shape of the body on which it is acting. आप देखो यहाँ पर mass था small m. Now in the formula of gravitational acceleration, यहाँ पर तो कहीं पर भी small m है ही नहीं. Even though the body is at certain height, or if the body is on the surface of Earth, बॉडी का मास तो आया ही नहीं जी के इक्वेशन में. इसका मतलब कि हमारा जो स्मॉल जी है वो बॉडी के मास के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके शेप पे डिपेंड करता है, ना ही उसके साइज पे डिपेंड करता है. सो अगर आप एक छोटा सा पेन ले लो
या एक बहुत बड़ी सी कार ले लो, कितना भी बड़ा, कितने भी ज़्यादा मास वाला आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, पेन के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, एक कार के ऊपर, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के ऊपर भी उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा होगा. आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला में बॉडी जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है उसका मास तो है ही नहीं. ओके, सो अब अगर आप इस डिनोमिनेटर पे कॉन्सेंट्रेट करें, हियर इट इज़ आर, हियर इट इज़ आर ई स्क्वायर. सो यहाँ पर ये आर जो है वो आर ई स्क्वायर से बड़ा था ना, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर ई. दिस वॉज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस आर दैट वॉज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट. तो जैसे जैसे हम ऊपर 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 जाते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस जी विल डिक्रीज. कैसे डिक्रीज होगी? से यहाँ पर r इज इक्वल्स टू वॉट, स्मॉल r इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच. तो ये r जो है वो आर ई से बड़ा है. तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, इफ द डिनोमिनेटर इज बिग, व्हाट अबाउट दिस, दिस वैल्यू विल गो डाउन. ठीक है, तो एक चीज़ हमको पता चल गई डिनोमिनेटर से कि ये जो स्मॉल g है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है. सो अगर आप हाइट चेंज करोगे या आप अर्थ के डेप्थ में जाओगे तो भी जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी. बट द चेंजेस इन द वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है. अभी हम कैलकुलेट करेंगे. एंड एज द वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, तो हम जी को हमेशा कैसा ले लेंगे? कांस्टेंट ही ले लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट नाउ यू शुड नो दैट दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, इट चेंजेस विथ हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अब हम कैलकुलेट करते हैं एक छोटे से चेंज के लिए क्या होता है, जी में कितना वेरिएशन आता है. तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द डिफरेंस इज विथ हाइट और डेप्थ. सो जी इज फंक्शन ऑफ हाइट और डेप्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी. ये आर स्क्वायर है, आई कैन टेक इट इन न्यूमरेटर एंड आई कैन राइट इट इन दिस वे, आर रेज टू -2. Now I will differentiate this g with respect to r. r was height, distance है ना, उसी के साथ चेंज होता है. तो हम जो स्मॉल g है उसमें अब डिफरेंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू r. तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएशन का इक्वेशन. नाउ विल डिफरेंशिएट दिस. बिफोर डिफरेंशिएटिंग व्हाट विल डू, दिस जी एम ई, G is universal gravitational constant, me is mass of earth, both of them are constant, so they will come outside of differentiation. So differentiation किसका होगा? सिर्फ r raised to -2 उसी का differentiation होगा. So now I can write this equation in this way. This I have taken constant outside and now see differentiation का formula क्या था? x raised to n का differentiation क्या होता है? It is n into x raised to n minus 1. This is the formula. So मुझे किसका डिफ्रेंसिएशन करना था? r raised to -2, इसका डिफ्रेंसिएशन करना था. So this power is equals to n. So -2 ऐसे आगे आ जाएगा. ये जो भी जिसका भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ x है, यहाँ पर हमारा r है, वो लिखेंगे और फिर क्या हो जाएगा? n-1. मेरा n कौन है? -2. सो हाउ आई विल राइट? -2 -1. सो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ डिफ्रेंसिएशन ओवर हियर. सो नाउ आई गेट this kind of answer. Now take this dr on this side of equal to. So I will get this type of equation. So this is the change in value of g with height. Okay. Now we'll divide this value by original g. So ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? dg को g से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? We are seeing the change in g विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल जी. ये जो हमारा चेंज आया था, ये मुझे चेंज मिल रहा है एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ जी. तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना चेंज आ रहा है. सो इक्वेशन 3 जो है, ये हमारा इक्वेशन 3 है जो चेंज इन जी का ऑब्टेन किया था हमने. और इक्वेशन 1 जो है वो इस जी का इक्वेशन था, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने ऑब्टेन किया था. सो वील डिवाइड इट. तो अब देखो डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को. सो व्हाट आई विल ऑब्टेन, डी जी बाई जी इज इक्वल्स टू दिस. अब इसमें से ये जी जो है इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे इक्वेशन इक्वल टू के.
So I will obtain this kind of equation. So this is the change in the value of gravitational acceleration with respect to r. R is the distance from the center of earth. अब यहाँ पर ना हम थोड़ी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट बिफोर दैट सपोज हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो हाइट पे नहीं है, वो कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे है. सो इंस्टेड ऑफ दिस आर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, आर ई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिकॉज व्हाट वाज आर, आर वाज आर ई प्लस एच. अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस पे है तो हाइट तो ज़ीरो हो गया, तो ये निकल गया, तो क्या बचा, आर इज इक्वल्स टू आर ई. सो विल सब्स्टिट्यूट दैट. सो नाउ माई इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दूंगी. स्मॉल जी जो है उसकी वैल्यू हम 9.8 डाल देंगे. डी आर दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर डिस्टेंस जो है मैं 10 किलोमीटर लेती हूँ, 10 किलोमीटर, ठीक है. रेडियस ऑफ द अर्थ कितना था, ये रहा 6400 किलोमीटर. अगर ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो चेंज इन जी हमें कितना मिलता है, इट इज़ दिस मच, -0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाउ मच डिस्टेंस, फॉर 10 किलोमीटर. सो अर्थ के सरफेस से अगर आप 10 किलोमीटर जितना ऊपर नीचे चले जाते हो तो जो वेरिएशन आता है इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ओनली दिस मच. एंड बिकॉज ऑफ सच अ स्मॉल चेंज, तो 10-20 किलोमीटर जितने हाइट या डेप्थ के लिए हम जी की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेते हैं. ठीक है, ये जो पोर्शन अभी हमने देखा, ये डी जी का जो कैलकुलेशन हमने किया है, दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. एक्चुअली ये पूरा टॉपिक ही आपके सिलेबस में नहीं है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, दिस फॉर्मूला, दिस वन, ये अभी आपके सिलेबस में से निकल गया है. बट अगर आपको आगे के 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं डेफिनेटली देन यू शुड नो दिस इक्वेशन. ओके,